ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਨਸ਼ਾ ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਨਸ਼ਾ ਆਖਰ ਇੰਨਾ ਹਾਵੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦਾ? ਅੱਜ ਇਹੋ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਡਾਕਟਰ NK ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MD ਨੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਾਇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹੇ ਨੇ। 20 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ 500 ਤੋਂ 600 ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਰਹੂਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਆਖਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਫੀਮ, ਭੁੱਕੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਨਸ਼ਾ ਜਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ कि आज जो असली जितनी भी साड़ी युवा पीढ़ी है या बल्कि सारे मध्यम वर्ग वाले लोग भी बहुत नशे के आदी होते जा रहे हैं। दिन पर दिन नशा बढ़ता ही जा रहा है और पंजाब च नशेड़ियाँ का वाकई इतना ज़्यादा फिक्र हो गई कि आप लोग एक तरह से बदनाम होते जा रहे हैं। तुसी जो बड़ी गल बहुत अच्छी कही है कि भाई क्यों नहीं छोड़ पाते, ये इससे कुछ कारण है। मतलब इस तरह होंदा है कि जब भी मतलब आम तौर पर जो साढ़े जो डॉक्टर मैं जो ऑब्जर्व किया है कि बंदे दे अंदर दो तरह की चीज़ां होंदी। एक तो होंदा है कि मैं जोश में अगे निकल जावां, तो वो जोश लिए वो की चाहता है कि कोई ना कोई मेरे को एक्स्ट्रा ताकत होवे, सपोर्ट चाहिए। तो वो सपोर्ट के तौर पर उन्होंने क्या है कि लोगों ने एक ऐसी रवायत बना रखी है या कोई एक इस तरह का वो बना रखा है प्लानिंग कि भाई अगर ये तुसी कर लोगे तो हो गए। साढ़े को जैसे बहुत सारे लोग दवाइयाँ लेना होंगे हैं, चंगा भला बंदा भी होगा सब, तब भी फिर भी साढ़े तो एक गल जरूर कहेगा वो पेरेंट्स जब नाल होंगे, डॉक्टर साहब कोई ताकत की दवाई जरूर दे दो। मीनस कि वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर चाहते हैं और वो जो जोश है वो सानू नशा एक प्रेरित करता है, इच्छा हो जाती है कि असी नशा खाइए। तो एक तो ये बहाना हुई, तो उस जोश वास्ते या दूसरे के कंपेरिजन अपने आप को ज़्यादा ताकतवर बनाने लिए बंदा अपना जोश न दिखाने लिए नशे की सेवन शुरू कर देता है। दूसरी गल होंदी है कि कई बंदियां नूं हीन भावना आ जाती है मन दे विच, जिन्हों आप डिप्रैशन भी कहते या हीन भावना। हीन भावना का मतलब क्या होया कि जे अगर आप पंजाबी समझे तो हीन भावना का मतलब ये है कि मैनू मेरे अंदर कोई ना कोई किसी चीज़ की घाट है, कमी है, और वो दूसरे लोग जो हैं जो मेरे समकालीन हैं या मेरे नाल जड़े हैं उन्हें जो वो मेरे तो अगे हैं और मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, इस कमी करके उससे बंदे अंदर हीन भावना आ जाती है। ये सब तरह की हो सकती हीन भावना। जैसे छोटी सी एग्जांपल मतलब तो बताऊँ, जैसे कोई बच्चा है स्कूल में पढ़ने जाता है
दो बच्चे हैं बरोबर है, एक पड़ोसी का बच्चा है, एक दूसरा है, एक अच्छे घर का है, एक थोड़ा गरीब घर का है। वो एक बच्चा जो बहुत अच्छे वेल टू अप टू डेट मतलब कार च बैठ के जाता है, बड़े अच्छे ढंग से जाता है, और दूसरा बच्चा साइकिल ते या रिक्शे ते जाता है, तो वो मन च आती कि यार आप पढ़ते एक ही क्लास से, पर ये बंदा मतलब मेरे तो ज़्यादा है और मैं मतलब इस मुकाबले कमज़ोर हूँ, चाहे आर्थिक पक्ष नाल माड़े हों। कई बार क्या होता है कि उस बंदे से दूसरे बंदा जब उसका ठाट बाट शान शौकत देखता है तो उस बच्चे की हीन भावना आ जाती है। दूसरी हीन भावना और आ जाती जैसे पढ़ाई के मामले में, मान लो सपोज दोनों अच्छे एक सेम स्टेटस वाले बंदे हैं, लेकिन एक बच्चा पढ़ने से बहुत अच्छा है तो दूसरा मंदबुद्धि है, थोड़ा कमज़ोर है, उन्हें समझ से नहीं आता, हिसाब की किताब नहीं समझ आती या कोई और मतलब, तो वो भी अपने आप में मन करता है यार ये फटाफट कर देता है, कोई टीचर ने सवाल पूछा झट से बता देना, मैं नहीं बता पाऊँगा। तो इस वजह नाल भी उससे मन एक ग्रंथि काम हो जाती है और उस ग्रंथि करके वो आदमी सोचता है कि मैं बड़ा उस डाउन होता जा रहा हूँ। तो असल च देखा जाए तो नशा जो है साढ़े शरीर के अंदर एक तरह का रासायनिक बोध पैदा कर देता है, कैमिकल चेंजेस, रासायनिक इंसेंटिव मतलब इस तरह देता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। मतलब ये कभी तो उसके अंदर बहुत जोशीला कि नहीं ये मैं कर दूँ, बड़े बड़े कई लोगों ने ऐसे से पुट्ठे सीधे काम करे हैं, उन्होंने शराब पी के ही करे हैं, नशे खा के करे हैं, तो कई बार मतलब आदमी एकदम डाउन हो गया, सुसाइड कर लिया, रेल की पटरी थले सो गया, कोई होर मतलब नहर च छाल मार दी, इस तरह ये हीन भावना वाले हो जाते डिफरेंट। तो ये नशे के दोनों ही मतलब पहलू मतलब आप देखे हैं। अब रहा सवाल क्या है कि इन्होंने अंदर कैमिकल चेंजेस जो होता है वो बॉडी को उस हिसाब से बना के रखता है। अगर बंदे ने कई बार मतलब अच्छी खुराक खा ली तो फिर तो वह काफ़ी देर तक वह शरीर साथ देता रहता है और कई बार नहीं होता। अब लोग ये पूछते कि नशा खाने नाल नुकसान की हुआ है जी, नशे खाने नाल तुहानूं मैनूं जोश आ गया। आम लोगों की साढ़े कोल कई बार एक क्वेश्चन होता है, लेकिन नशे के खाने का मतलब ये है कि शरीर च जोश आ जाता, नो डाउट। शराब पी के बंदा एक बार तो ऐ लगता है कि यार तो बड़ी ताकत होगी, कोई बंदा आसानी नाल शराबी नूं फड़ नहीं सकता, उन्होंने ले जा नहीं सकता, क्योंकि नैचुरली उसके कोल जोश आ। लेकिन ये किस तरह की गल होती है, जैसे तुहानूं मैं एक एग्जाम्पल दे के बताना हूँ कि तुहाडे कोल मान लो 500 रुपया हैगा, थोड़ी पूंजी है, थोड़ी कैपिटल है। मैं आप किसी होटल 'च बैठे और मैं कहा यार आप चलो मैं तुहानूं खाना खिलाना हूँ। अब वो खाना खिलाने लिए खाना खा लिया अपन, लेकिन पेमेंट करनी है तो मैं क्या करा, तुहाडी जेब चो पैसे निकाल के उन्हें पेमेंट कर दी। वादा किन्ने कीता सी कि मैं खाना खिलाना है, लेकिन मैं पैसे तुहाडी जेब चो निकाले हैं और उस होटल वाले ने दे दिया। तो नशा यही काम करता है कि तुहाडी जो स्टोर्ड एनर्जी है शरीर के अंदर, जो संचित या जो ताकत बनी हुई जमा है, जमा पूंजी जिन्हों आप कहते हैं कि फिक्सड एनर्जी जो है, वो एनर्जी नशा उसों उत्ते कट कर दे। मतलब नशे नाल कोई एक्चुअली एनर्जी नहीं आती, नशे नाल कोई भी एनर्जी नहीं आती, लेकिन वो जो तुहाडी जमा पूंजी है उससे मान लो जितनी 100 है, 100 में से 20% ख़त्म हो गई, फिर थोड़े दिन होर खा लिया, होर 20% कम हो गई, फिर 20% रोज़ थोड़ी थोड़ी जिस हिसाब नाल तुहाडी नशे की मात्रा होंदी है उस हिसाब नाल धीरे धीरे तुहाडी एनर्जी खत्म हो जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि वही नशा पी के तुसीं लड़खड़ाने लगते हो, तुरिया नहीं जाता, खत्म हो जाता है और बंदा सोचता है कि यार मैं हुण सुसाइड कर लवां, चाहे रेल की पटरी 'च जावां, चाहे नहर 'च छाल मार लवां, चाहे कुछ ना कुछ आत्महत्या कर लवां, कोई ना कोई मतलब फायल लड़ जाता है। तो ये चीज़ां मतलब ये नशे के नुकसान होंगे। इसलिए नशे नाल कोई भी अपन को एक ऐसी एनर्जी नहीं मिलती है। तो उस तरह से मतलब तुसीं बड़ा अच्छा सवाल किया है। तो मेरे ख्याल से डॉक्टर ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮੈਡੀਸਨਲ ਪਲਾਂਟ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੋਡੀ ਦੀ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ, तो जोश आने का जोड़ा एक मेन कारण जोड़ा ये नशा जोड़ा ये भी एक कारण मन्ना जाता है। हाँ, ये कारण होता है क्योंकि नशे के नाल शरीर से जो ज़्यादा चुस्ती फुर्ती, एक बार सारी एनर्जी में बताया ना कि शरीर के अंदर जड़ी भी इकट्ठी स्टोर्ड एनर्जी है वो एक साथ कंसनट्रेट होकर के एक्टिवेट हो जाती है। वही आप थोड़े थोड़े धीरे धीरे हिसाब में रूटीन वाला काम होता है कि नशा नाल क्या होता, सारा खून का सर्कुलेशन इकट्ठा हो गया, बॉडी में एकदम माइंड में इतना एक्टिवेट कर देता है कि तुरंत आ काम कर दो, तो पूरे जोश नाल कर दो। इसलिए थोड़ी देर वास्ते वो एनर्जी हो जाती है, लेकिन जैसे ही नशा दा उतरता है कि थोड़ी एनर्जी कम हो जाती है और थोड़ा ब्लड जो पानी का जैसे बहाव नीचे उतरता है, ऐसे ऐसे तुम डाउन होते जाते हो। अच्छा, इत्थे नाल एक सवाल इदां दा भी हैगा डॉक्टर साहब कि ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕੈਮੀਕਲ ਔਰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਲਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਿਆ, कि वो भी एक नशे का एक कारण बन रहा है ये। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल बहुत ही बड़ा प्रैक्टिकल सवाल पूछा मेरे को। रूटीन से जब कोई पेशेंट्स वगैरह आते हैं तो ये गल्लां जरूर होंगी, नपुंसकता वाली गल जरूर करते वो। और ये देखा कि आम तौर पर होंदा उल्टा है, मतलब दोखी जड़े उन्होंने संगति वाले लोग या जो यार दोस्त होंगे ना, वो उन्होंने कहते यार तू अफीम खा ले तेन ताकत आ जाएगी, तो वो इस जोश से वो खा लेंदा है। या कोई होर नशा बुक्की है, हीरोइन है, कोई कई तरह के केमिकल्स है, गोलियां हैं, ये खा लेते तो वो जोश जवान लिए कर लेता है। लेकिन ये चीज़ें सारी एक्टिवेट करके एक बार तो एनर्जी बना देगी, लेकिन धीरे धीरे वो इतना डाउन कर देगी कि उससे ऊपर वो नशे का असर खत्म हो जाता। ये थोड़े ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर इस तरह का बर्ताव ला देंदी है कि थोड़ा जो एक्टिवेशन है, जैसा माइंड की जो एक्टिव सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जो फंक्शन है वो थोड़ा धीरे धीरे फंक्शन, कॉन्शियसनेस वाला जो फंक्शन है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जाता है, और तो उन्होंने धीरे धीरे नपुंसकता वाला बंदा चला जाता है, और वो एकदम सारी तरह से फ्यूज़ हो जाता है मतलब तरह से। ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਡੀ ਦੀ ਰਿਦਮਿਕ ਵਾਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? हाँ शरीर के अंदर मतलब एक ब्लड कॉन्सेंट्रेशन लेवल होंदा है हर चीज़ का, चाहे दवाई का हो चाहे नशे का हो, किसी का भी, तो वो एक लेवल बॉडी एक मेनटेन करके रखती है। उस लेवल दे मेनटेन करने दे नाल क्या होंदा है कि जब नशा छड़ देंदा तो उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती, तो थोड़ी देर वास्ते वो अपने आप में वीक सा महसूस करता है कि यार मेरे को जो एनर्जी सी वो चली गई। लेकिन ये जो मानसिक रूप से जो भावना होती है, वो जो एनर्जी लेवल उसको मेनटेन किया जा सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उसके लिए नशा ही लिया जाए। लेकिन ये भावना की होंगी कि जैसे तुम देखा हो कभी जुआरी होंगे ना, जब जुआरी जुए च हारदा जाता है ना, तो वो दूसरी बार मतलब हारने के बाद वो ये सबक नहीं लेंदा कि यार मैं हार गया, मैं हूँ छड्डा इनू, वो दूसरी बार फिर और जोश लगा कि नहीं मैं होर चके लाने। चाहे आप महाभारत का किस्सा देख लीजिए या रूटीन अपने व्यवहारिक जीवन च भी देख लीजिए। हाँ कहता मैनू किसी मतलब जीतने की चाह उसकी इतनी प्रबल होती जाती है कि ज्यों ज्यों जैसे मतलब वो हारदा जाता ना, वैसे वैसे उसकी चाह और डबल होती जाती है कि नहीं मैं अगली बार जीत लूँगा, इस बार मैं जरूर जीत लूँगा। इसी चक्कर च वो नशे की डोज बढ़ाई जाता है और सोचता यार मैं नहीं छड़ता जी, मैं तो खाऊंगा, मैं उन्होंने वो करना, मैं ढहा लेना उन्होंने। इस करके वो एक जुआ जैसी, जुआरी जैसी स्थिति, हारने के बावजूद भी अपनी हार नहीं मानना, वो हीन भावना मतलब कह सकते हो उसनों कि हीन भावना नाल ग्रसित हो जाता है। और उससे मन च यही रहता है कि यार मैंने लोग की कहने गए इसलिए मैं मतलब वो कर लूँगा, और जब सारा खत्म हो जाता है तो सुसाइड कर लेता है। अच्छा ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਜਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ टाइप 1 टाइप 2 ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ कुछ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? हाँ मतलब इस तरह है जी कि ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि बंदा किस तरह का नशा खा रहा है। जैसे सपोज मान लो शराब का भी नशा है, शराब खूब पीते हैं तो बहुत ज़्यादातर लोग मतलब जो ज़्यादा शराब पीते हैं, लोड़ तो वध पीते हैं, तो अंदर सीरम अल्कोहल, ब्लड के अंदर अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है, और उस कॉन्सेंट्रेशन के बढ़न के नाल वो बंदा मतलब अपना मानसिक संतुलन है वो धीरे धीरे बिगड़ने लगता है, बैलेंस नहीं कर पाता। दूसरा जो फिजिकल तौर पर उन्होंने रूटीन च हम देखना चाहे कि उन्होंने लीवर का कोई ना कोई डिसऑर्डर हो जाता है, वो लीवर फंक्शनिंग काम कर नहीं पाती, और वो मतलब उससे भूख मर जाएगी, कब्जी होना शुरू हो जाएगी, पेट फूलना शुरू हो जाएगा, गैस बढ़ना लग जाएगी, तो इस तरह के लीवर के डिसऑर्डर्स वगैरह मतलब हो जाते हैं। और अगर कहीं मतलब जैसे अफीम टाइप या कोई होर नशे की कोकेन या कोई हीरोइन या ऐसी कोई गोलियां खाते हैं, वो सीधे ब्रेन में चढ़ जाती है, दिमाग के ऊपर असर पाती है, उससे उसका ब्रेन की जो एक्टिविटी है उसकी जो यूजुअल प्राइमरी कंसंट्रेशन लेवल जो है उसका वो ख़त्म हो जाता है। उसमें मतलब जो उसके अंदर जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग, कंप्रहेंसिव पावर जी होंगी ना वो उसकी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए वो हर वेले मतलब कि अपने आप को समझेगा कि भाई मैं ही सही हूँ, या अड़ जाएगा, जिद्दी हो जाएगा, क्योंकि वो होंदा तो दिन पर दिन बेसिकली तो कमज़ोर होता जाता है, लेकिन वो अपने आप से नहीं मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सही हूँ, और उससे वो क्रिमिनल भी बन जाता है, उल्टे सीधे काम भी करने लग पाता है। तो ये स्थिति मतलब बनी रहती है। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ, ਅਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਵਾਲੇ,
ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी, बहुत ही तारीफ़ काबिल क्वेश्चन है कुलवंत सिंह जी। लेकिन इस मामले 'ਚ मैं एक गल सीधी क्लीयर कर लवां कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ ऐसी कोई दवाई नहीं होंदी कि जो ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਬੋਤਲ ਦਾ ਛੱਡ ਦੇ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ऐसी दवाई नहीं होंदी कि गोली 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ फेंक देगी। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਨ ਦਾ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। लेकिन तू एक बार पक्का एक मन पक्का करके आ जा। अगर तू मन पक्का कर लिया है कि मैं नशा छड़ना चाहता हूँ वाकई, तो मैं थोड़ा इलाज शुरू कर दूंगा। नशे दे छड़ना जो जो तुम्हें तकलीफा होगी वो मैं दूर कर दूंगा। जैसे बंदे जैसे अफीम खा रहा है, उन नशा छड़न नाल टट्टियाँ लग जाएगी, पेट अफारा हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, सुस्ती आ जाएगी, शरीर टूटन लग पैंदा है, वो असी चीज़ें दूर कर देवांगे इदी। लेकिन अगर चोरी छिपे खा के असी किसी ने देखने तो जा नहीं सकते कि भाई वो अपने घर जाके खा ले, कितने लुको के खा ले, तो वो चीज़ नहीं। मतलब पहली शर्त साड़ी यही होती है कि बंदे की खुद इच्छा होनी चाहिए कि मैं छड्डना चाहता हूँ। अगर वो मन पक्का कर लेंदा है कि मैंने चाहे कोई लाख है, क्योंकि आम तौर पर ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਲੋग ਉਹਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਬਰਗਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ बिगाड़ते हैं एक तरह से, यही कह लो कि वो कुछ नहीं होता जी, तू खा ले, कुछ नहीं है, तो डॉक्टर तो यही कही जाते हैं कुछ नहीं होता, ले कुछ नहीं खा, और उसनों ज़बरदस्ती लगा देंगे। मतलब कई मैं ऐसे लोग देखे जिन्हों का असी छुड़ाया भी है नशा, शराब भी छुड़ाई है, लेकिन वो बाद उन्होंने कोई नहीं जी मैं क्या करा जी, उस सोसाइटी 'ਚ बैठ गया सी जी, उत्थे क्लब 'ਚ असी मन्ने नहीं जी, सब मैंने सौं दे दी कि नहीं तू नहीं पिएगा तो मैं ये कर दूँगा, तो इस तरह करके। लेकिन वो इच्छा अंदर तो ही होती है जी, अगर मन पक्का कर ले बंदा फिर कोई नहीं उन्होंने पिला सकता, लेकिन जो मन कच्चा है तो कोई उन्हें छुड़ा भी नहीं सकता। तो ये ਜਿਹੜੇ आम तौर पर असी कई बार देखते हैं साढ़े नशा छुड़ाओ केंद्र बहुत ही उतनी कामयाबी नहीं दे पाते जितनी चाहिए, जितनी आप समाज एक्सपैक्ट करता है। उसका मेन कारण यही होता है कि असी फिजिकली दवाई दे देंगे भाई चल ठीक है, अफीम छड्डन दे ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, शराब छड्डन दे ये हैं, केमिकल ड्रग्स खाने नाल ये नुकसान हो रहे हैं, तो उन्होंने साइड इफेक्ट के हिसाब नाल फिर दवाई दे देते हैं। लेकिन जे अगर वो मन च उसकी भावना है तो कोई देखने तो जाएगा नहीं, चोरी छिपे वो फिर खा के आएगा, गल तो उत्थे उत्थे रहनी है। तो डॉक्टर साहब ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਨ ਪੱਕਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? देखो जी, इस अगर जे तुसी ये गल पहली गल तो अपने अड़े रहंदे हो कि मन पक्का है, फिर तो कोई भी नशा छुड़ाना कोई बहुता कठिन नहीं है। तिना दी स्टेजेस वही है, ये इससे भी डिपेंड करता है कि बंदा किस क्वांटिटी तक खांदा रहा है। वो जे बहुत ज़्यादा मतलब शराब पी रहा है तो उसनों धीरे धीरे ग्रेजुअली उसनों लाइन ते लाया जाएगा। यानी उन्होंने पहला ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਘਟਾਉਣੀ ਪਏਗੀ? असल च जी असी बहुत बार देखा है कि एकदम छुड़ा देने नाल वो बंदा मतलब उसकी बॉडी मेनटेन नहीं कर पाती है, इसलिए असी उन्होंने थोड़ा थोड़ा डोजेस रिड्यूस करके करते हैं। अफीम जैसे छुड़ाना, अफीम छुड़ाना तो साडा सिंपल फार्मूला यही है कि जैसे मान लो एक बंदा कहता मैं जी 2 ग्राम रोज़ अफीम खाना हूँ, 2 ग्राम इन 2000 मिलीग्राम, असी उन्होंने ये कहते कि भाई तू 100 मिलीग्राम अपनी ईमानदारी नाल जो तुसी खा रहे हो बुक्के से निकाल के अलग सुट जाए। रोज़ 100 मिलीग्राम मतलब अगर कर दे एक हफ्ते तक, वो पहले हफ्ते जो थोड़ा सा कंसनट्रेशन रहेगा उन्होंने 100 मिलीग्राम सुट दी उन्हें, तो 1900 मिलीग्राम 2000 की 1900 खाता रहा। हफ्ते बाद उसका बॉडी का कंसनट्रेशन लेवल 1900 से सैट हो जाएगा, मतलब 100 ग्राम उसकी कट होगी। अगले हफ्ते तो फिर 100 मिलीग्राम कट कर देंगे, 1800 होगी, फिर अगले हफ्ते फिर उसकी 100 मिलीग्राम। तो ऐसे थोड़ी मात्रा जो रोज़ 100 मिलीग्राम करते उस नाल ऑब्जर्व करते रहेंगे कि भी इस तरह थोड़ा कोई बीपी डाउन तो नहीं होता, ये कोई थोड़ा नींद उड़ती तो नहीं है, या ये कोई थोड़ा शरीर टूटता नहीं वो। लेकिन ये धीरे धीरे कम करता है, क्योंकि जिथे 2 ग्राम है 2 ग्राम से 100 मिलीग्राम कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, और वो आराम से छोड़ देगा और उसकी बॉडी एडजस्ट हो जाएगी। तो दवाई भी देनी पैंदी? हाँ, वो दवाई तो देनी पड़ेगी, लेकिन ये है कि धीरे धीरे इस प्रोसेस में छुड़ाओगे तो वो पक्के तौर पर छोड़ जाए, चाहे अफीम है, चाहे केमिकल है, चाहे शराब है, सभी असी इसी तरह करते हैं और कामयाब होंगे। मतलब
ਜਿਹੜੇ एकदम से ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ हैं वो मतलब कई बार तो कामयाब हो जाता है, पर बहुत बार अक्सर ये देखने जाए कि एकदम से छड्डन वाले बंदे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, कुछ टट्टियाँ लग जाएगी, परेशान हो जाएगा बंदा, शरीर मतलब हो जाएगा, कभी कई बार नपुंसकता भी आ जाती है, कई बार शरीर एकदम इतना चलने लगता है, कई बार मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, कई बार बॉडी दे बैलेंस नहीं बनता, पैर लड़खड़ाने लगते हैं। तो उस कंडीशन जो बंदा थोड़े दिन तक तो सहन करता है, लेकिन फिर कहता है यार इससे तो मैं शराब ही चंगी एक पैक पी लिया, मैंने नींद बढ़िया आ जाएगी, तो ये भी हो जाता है, तो वो फिर मन तोड़ जाता है। लेकिन उसके बॉडी के कॉन्सेंट्रेशन लेवल तो ब्लड के अंदर अगर धीरे धीरे उसे अल्कोहल की मात्रा या उससे जो भी नशा है उसकी मात्रा में देख करके अगर असी चलावांगे तो करीब करीब वो छूट जाता है। तो डॉक्टर साहब सब तो टफ सब तो औखा ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣਾ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣਾ ये है? जी हीरोइन वगैरह है जो केमिकल से हीरोइन कोकेन ये जो नशे हैं ना ये सबसे ज़्यादा कठिन है, इन्हों छुड़ाना बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इतने जल्दी अब्जॉर्ब हो जाते कि खाते सारी एकदम बॉडी के उपर असर होता है। मैनू याद है मेरे को एक पेशेंट आता सी जी, तो मुंडा सी मतलब करीब 20-22 साल का मुंडा सी, तो उन्होंने वो कोकेन खाने की आदत लग गई, चिट्टे की दवाई चिट्टा जिन्होंने आप कहते हैं वो खाना शुरू कर दिया उन्हें। तो ਉਹਦਾ दूसरा भरा सी वो कहता यार तू कित्थे लत च पै गया कुछ वो कर दिया, तो तुसी है ना कहता ये छड़ दे बेटे, आप दोनों भरा हैं, आप अपनी इन्नी ज़मीन है इन्नी पैड़ी है इतना अच्छा है, आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, आप अच्छी खेती कर सब कुछ कर सकते हैं, तो ये गलत आदत पढ़ के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। उन्होंने बहुत करे जी कई बार, पर वो मन्या नहीं। फिर एक दिन उन्हें इतना इमोशनली उसनों जो नहीं खाता सी वो कराया कि नहीं यार कहता फिर नहीं तो मैं भी मर जाना, नहीं तो कहते तू मरे ना, तो उसी कहता एक काम कर ये जिन्ना मैं खाता हूँ ना इससे थोड़ा ਵੱਧ एक दिन खा ले तो फिर आप दोनों साथ छड़ दिया। वो बंदे ने जी उन्होंने खिला दिया, मतलब जितनी भी मात्रा च खांदा सी थोड़ा ਵੱਧ खिला दिया। उस दिन के बाद तो वो बंदा भी वैसे के वैसे ही हो गया, तड़फन लग गया, वो घर से एक नशेड़ी की जगह 2 नशेड़ी हो गए और किसी भी हाल से वो दोनों नहीं छोड़ पाए। तो ऐसी कंडीशन मतलब बन जाती है जिससे कॉम्प्लिकेटेड मतलब बहुत टफ हो जाता है। ये जो कोकीन वाला ये होंगे हैं हीरोइन वाले इन्हें छुड़ाना थोड़ा दिक्कत आती है, बाकी शराब वाले अफीम वाले अगर मन पक्का कर लेते हैं तो जल्दी कामयाब हो जाते हैं। ऐसे ही गोलियां का भी है, तो गोलियां का भी कि किस तरह की खा रहा है, डाइजेपम खा रहा है या और कोई मतलब इस तरह लोप्रामाइड खा रहा है, तो इस तरह की जो भी मतलब वो खा रहे हैं उन्होंने धीरे धीरे मतलब वो हो जाए। और बाकी सरकार की तरफ से भी थोड़ा होना चाहिए कि इन्हों की अवेलेबिलिटी जो है ना इतनी ईजी नहीं होनी चाहिए, तो जितनी टफ अवेलेबिलिटी होगी उतना कम हो जाएगा कम से कम, क्योंकि जे अगर जो शराब की दुकान ही बंद होगी तो कहते यार चलो 2 दिन बंद है 2 दिन छड़ देने आप, तो 2 दिन तो छूट गए होते। या कई बार जैसे कोई लोग वो व्रत कर लेते कि ऐसी जी मंगलवार को नहीं पीना जी, तो कम से कम 1 दिन तो कम हुई होती। लेकिन जी अगर अवेलेबिलिटी एबिलिटी अगर अवेलेबल है वो चल छड़ रहे, जैसे ब्याह शादियाँ च मैं देखा अधिकतर जो फंक्शन अब तो चलो अभी फ़िलहाल कोरोना करके थोड़ा सा वो चल रहा है, अदरवाइज ब्याह शादियाँ जड़े कभी नहीं पीते उन लोगों को भी पीने में देखा मैं, कि उसे ईजीली अवेलेबिलिटी सारा वो आ जाता, बार बार सर्वर आंदा सर्वेंट आता लो जी लो जी लो जी, यार दोस्त होंगे ले एक पैके ना कुछ नहीं होता यार ले ले, तो वो एक शुरू हुआ है कि फिर वो बाद शुरू हो जाता है और आगे भी पीता रहता है। फिर जब भी कई लोग मतलब कहते जी मैं तो बस सिर्फ वार त्यौहार पीता हूँ जी, या मैं सिर्फ फंक्शन से जाता उत्थे पी लेता हूँ, तो इस तरह की कंडीशन अपने। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਖਾਨਦਾਨੀ ਵੈਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? देखो इस तरह की कोई ये जनरली ये इस तरह के लोग ठग होंगे हैं जिन्होंने आप कहते हैं झोला छाप डॉक्टर, उस तरह के लोग होंगे हैं। इन्हों का मेन टीचा दवाई या नशा छुड़ाना नहीं होंदा है, उन्हों का मेन टीचा पैसा कमाना, थोड़ी जेब च किस तरह पैसे कबड़े जाए। तो इसलिए वो कोई ना कोई दवाई कुछ ना कोई ऐसी नशे वाली कोई ना कोई दे देंगे हैं। जनरली मैं देखा कि नशे वाले नशा छुड़ाने वाले कोई ना कोई नशा ही देंगे हो। वो जिस तरह पूछ लेंगे कि भाई तू अफीम खांदा है तो अफीम उसी टाइप की किसी होर फार्म च,
कोई गोली बना देंगे, कोई कैप्सूल बना देंगे, कोई होर कह दे भई आ थोड़े दिन खा, तेनों बिल्कुल फर्क नहीं लगेगा, तू नशा ना खाई और कोई ना खाई, बस यही खाई। तो वो उससे वो डिपेंड हो जाता है कि भई आ ले जा, तो 1 महीने की दवाई ले जा, 1 महीने तू ठीक हो जाना। महीने बाद खांदा बंदा, उसके बाद किसी वजह नाल मान लो 4 दिन नहीं लेना पाਉਂਦਾ, तो 4 दिन बाद ਉਹਦੀ वापस वही हालत हो जाती है जो नशा छोड़न के बाद उनकी शरीर टूटन लगता है। फिर उसी ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ है कि यार वो बंदा कितने चला गया, तब तक वो बंदा अपना डेरा उठा के कहीं और चला जाता है। तो ये जनरली इन्हों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, ऑथेंटिक नहीं होंगी है। कई बार इन्हों की दवाइयाँ कोई इतनी तेज़ है, इतने कैमिकल्स वाली है, कोई ऐसी पॉइजनस होंगी है जो रिएक्शन भी कर सकती है, एकदम से शॉक आ जाता है, एकदम से BP हाई हो जाता है, एकदम से दिमाग की नसां फट जाती है, उल्टियाँ लगना शुरू हो जाती है, और इतनी ऐसी टट्टियाँ लगना शुरू हो जाती है, और कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है बंदा बेहोश होकर ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुते भरोसे वाले गारंटी वाली नहीं दे सकते आप इन्हों कि नुकसानदायक ही इन्हों तो नहीं लेना चाहिए। हमेशा जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स है, जो सरकारी मतलब या जहाँ पे भी मतलब क्वालिफाइड आदमी तो लो, वो लोग कहते हैं ना जो जे अगर मरना भी है तो सियाने बंदे के कोल जा करके ही मतलब अपना वो करो, क्योंकि अच्छे प्रयास नाल तो कम से कम ईमानदारी नाल एफर्ट्स तो करेगा ना। और ये जो तुक्के लगाने वो तुक्के नाल तो कोई भरोसा ही कोई नहीं ना, ज़्यादातर खतरा या नुकसान होने का ही खतरा रहता है। इसलिए इन्हों तो सावधान रहने की मैं चाहूँगा कि इन्हों के मगर ना लगन कोई। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਆਈਏ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜੇਕਰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਜਾਤ ਦਵਾ ਸਕੀਏ? हाँ जी, आयुर्वेद च भी है ऐसी मतलब दवाइयाँ जिन्हों के नाल आप कर देंगे। इस च भी साडा जो पहला सिद्धांत तो यही है कि आयुर्वेद का पहला सिद्धांत है जी संक्षेप तक क्रिया वो निदान परिवर्तनम, कि इन द ब्रीफ मतलब जो भी उसका निदान है मतलब कॉज है, ट्रीट द कॉज को दूर करो। तो जड़े भी कॉज जैसे मान लो वो अफीम वाला है, शराब वाला है, या होर कोई केमिकल वाला नशे वाला है, तो उसकी एक एस्टीमेट करो कि वो टोटल कितनी क्वांटिटी एक्चुअली खाता है, उस दे हिसाब में अपन डोज फिक्स करना पड़ेगी। साढ़े को कुछ मतलब ऐसी उससे नाल मतलब इन्हें जो बंदे ने से मन पक्का कर लिया है कि भाई मतलब इच्छा शक्ति पहली चीज़ है। अगर इच्छा शक्ति मन पक्का कर लिया तो वो क्या करेगा, बंदा आएगा साढ़े को कि भाई कहता जी मैंने बहुत कमज़ोरी लगती है, शरीर च कमज़ोरी लगती है, मेरे से तुरया नहीं जाता है, मैंने भुख नहीं लगती है, मेरे तो उठा नहीं जाता है, मेरी लत्ता पीड़ कर दी है, तो उसनों असी अच्छा पोषक आहार दे सकते हैं। उन्होंने पनीर खाने लिए दे दो, उन्होंने देसी घी दा कड़ा बनाने लिए दे दो, या कोई और मतलब अच्छी ताकत बादाम खाने लिए दे दो, काजू दे दो, ड्राई फ्रूट्स वाली कोई चीज़ें दे दो, शेक वगैरह मैंगो शेक है, बनाना शेक है, चीकू शेक है, ये इस तरह के मतलब दो, तो इन्हें तो थोड़ा सा न्यूट्रिशन मिलेगी, तो उससे नाल उन्हें मतलब थोड़ी एनर्जी मिलेगी। और अगर वो मानसिक तौर पर महसूस करता है कि सुस्त हो के बुझा बुझा पड़ा है, तो साढ़े को कुछ दवाइयाँ हैं जैसी जो ब्रेन टॉनिक का काम करती है, जैसे अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, जटामानसी है, मंडूक पर्णी है, ऐसी कई अलग अलग दवाइयाँ होंगी है, तगर है। ये दवाइयाँ नाल मतलब उन्हें माइंड में सैटलमेंट आती है, मतलब जो ब्रेन के अंदर जो इरीटेशन है, गुस्सा है, या गर्मी सी जिन्होंने कहते हैं आप गर्मी चढ़ गई सिर वो चीज़ों ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ उन्हें ठंडक देती है। वो ठंडक देगी तो धीरे धीरे उसको अच्छा लगेगा। और जैसे मतलब कोई टट्टियाँ लग जाती है बंदे को, कोई अफीम छड़न वाले नूं, तो टट्टियाँ रोकने वाली दवाइयाँ भी साढ़े कोल होंदी, संजीवनी बूटी है जो बनी बनाई आती है, बाकी कोटा घनवटी होंदी है, और दूसरे खाने च आप मतलब दही की मात्रा अच्छी खिला सकते हैं, उन्होंने केला खिला सकते हैं, लस्सी पिला सकते हैं, पनीर खिला सकते हैं, तो नींबू पानी शिकंजी टाइप बना के दे सकते हैं। तो इन्होंने चीज़ों नाल उन्होंने थोड़ा सा जो डिहाइड्रेशन या उसकी जो कमज़ोरी सी महसूस करता है, वो नारियल का पानी पिला सकते हैं, तो एक बार एनर्जेटिक हो जाएगा और धीरे धीरे वो सेटिंग हो जाएगी। 2-4 दिन ऐसा महसूस होगा, लेकिन अगर उसका मन पक्का है तो धीरे धीरे उसकी सारी एनर्जी ਨੂੰ वापस गेन किया जा सकता है। ਕੁਛ ਮਾइंड मैनेजमेंट भी होंदा है, जिस तरह ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ध्यान लगाना या फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ? बहुत अच्छा है जी। अगर योग के अंदर आप मतलब सर्वांग आसन कर लेंगे हैं, शीर्षासन कर लेंगे हैं, अगर ध्यान लगते हैं, अनुलोम विलोम कर लेंगे हैं, तो जो सूर्य नमस्कार है, ये सारी चीज़ें मन को शरीर को तंदुरुस्त रखती है। तो योग की प्रोसीजर्स मतलब तो ये योग वाले बहुत सारे लोग होंगे टीचर, उन्होंने सहायता लेकर के उससे नाल बहुत अच्छी एनर्जी आएगी। स्वामी रामदेव जी अपना रूटीन दिखाते रहते हैं टीवी पे, तो बहुत अच्छा वो होता है और बहुत सारे लोगों को उससे फ़ायदा भी होता है। जैसे वेरी गुड आइडिया, मतलब योग भी एक अच्छा तय। बस वही है कि उससे भी मेन योग का मतलब है चित्त वृत्ति निरोध, मतलब मन सब जगह से
ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਅਬ ਹੁਣ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਟਕੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਸੇ ਫਾਇਦਾ ਯੋਗ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਲਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਟੋਟਕਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਝੜਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਬ ਜੇ? देखो जी, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। जैसे मैं पहले की जो इच्छा शक्ति बंदे दी हैगी, उसनू जब जैसे कोई किसी तरह का नशा खाना, जैसे तंबाकू खाने का है या और कोई ऐसी, तो वो सौंफ खान ली। तो अगर सौंफ खा के चबांदा है वो, या दालचीनी है या छोटी इलायची है, लौंग है, ये चीज़ें एक बार मुँह च रख के चूसे और नाल मतलब ठंडा पानी पी ले तो फ़र्क पड़ेगा। खास करके सौंफ का बड़ा फ़ायदा है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸੌਂਫ ਦਿਓ ਵੀ ਚਬਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਚਬਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਥੋੜਾ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਦੀ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਦਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ? हाँ, उससे प्रबल हो जाती है। उस वे फिर तो थोड़ी अच्छी डाइट खिला दो, नरिशिंग डाइट, जिसका क्योंकि वो इच्छा शक्ति प्रबल हो जाती है लेकिन वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है, तो उसको अच्छे जैसे शाही पनीर खिला दो, तुम आंवले का मुरब्बा खिला दो, कोई देसी घी का कड़ा बना के खिला दो, कोई शेक वगैरह अच्छा बढ़िया बना के पिला दो, तो शरीर से एनर्जेटिक आइसक्रीम खिला दो, तो उससे भी माइंड थोड़ा सा मतलब सैट हो जाएगा। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। बहुत धन्यवाद जी कुलवंत सिंह जी, तुसी बहुत अच्छी गल्लां पूछी है, जिस नाल नेचुरली साडे दर्शकों ਨੂੰ और जिन्होंने भी सुनिया है उन्होंने बहुत बहुत फ़ायदा होगा। और यही साडा लक्ष्य है कि पंजाब के अंदर क्या बल्कि सारे देश तो नशा दूर होवे, ये साडी भावना है। और इस विच जो तुसी उपराला कर रहे हो, मैं चाहूँगा हो तुसी उससे बहुत पूरी सफलता मिले, चंगी सफलता मिले, ऐसी मेरी शुभकामना है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सो ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ NK ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੀਠ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਅਗਰ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ, ਪਰ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੰਗਦਾ ਸਰੀਰ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦਬ ਜੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।